سب سے پہلے اہم خبر، حال ہی میں پارلیمنٹ سے منظور کرائے گئے آئینی پیکج کی مسودہ سازی میں کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جن کی وجہ سے الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے، لیکن ایک اہم ماہر قانون نے سنگین خامی کی نشاندہی کی ہے کہ اگر اس خامی کو 27ویں ترمیم کے ذریعے حل نہ کیا گیا تو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ جنگ اور دا نیوز میں شائع ہونے والے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق اٹارنی جنرل نے دی نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سنگین خامی کی وجہ سے نیا جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے اور نہ کوئی آئینی بینچ مقرر کیا جا سکتا ہے، تا وقت یہ کہ پارلیمنٹ 27ویں ترمیم کے ذریعے اس شق میں ترمیم نہ کرے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے بتایا، میرے خیال میں اس وقت تک پرانے بینچ چلتے رہیں گے اور کوئی آئینی بینچ نہیں ہوگا۔ سابق اٹارنی جنرل نے حالیہ آئینی ترامیم کی زبان میں ابہام اور مسودہ سازی کی کچھ غلطیوں کی بھی نشاندہی کی، لیکن آئینی بینچوں کے بارے میں ان کا نظریہ تشویشناک ہے۔ ساٹھ سے زائد امریکی ایوانی نمائندگان نے صدر بائیڈن کو خط لکھ کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی کوشش کی جائے، امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے، پاکستان سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کی ضمانت لی جائے۔ خط میں امریکی اہلکاروں نے جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اپیل بھی کی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جوڈیشل ورک کی وجہ سے چیمبر ورک پر چلے گئے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمرہ عدالت نمبر 1 میں مقدمات کی سماعت کریں گے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہوں گے۔ جسٹس منصور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ فیملی سمیت عمرے پر روانہ ہوں گے، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کی واپسی 1 نومبر کو ہوگی۔ رہنما تحریک انصاف شعیب شاہی نے کہا ہے کہ ان کی جماعت 26ویں آئینی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ یحییٰ آفریدی صاحب کی ذات سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن وہ تیسرے نمبر پہ ہیں۔ جو چیف جسٹس بننے کا حق ہے وہ سینئر نمبر 1 کا ہے۔ اس وقت جو ان کا چیف جسٹس بننا ہے وہ درست فیصلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو ایز اے ہول پوری اس 26 امینڈمنٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ جو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچ کا تقرر ہوگا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر حملہ ہے۔ ہماری تو ریکویسٹ ہوگی اس کو فل کورٹ سنیں۔ آئینی بینچ ہے اسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا ون آف دی پارٹ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بائی پروڈکٹ ہے آف دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درست ہے یا نہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی چیف جسٹس بنے اس کے بعد فل کورٹ ہو جو کہ اس معاملے پر فیصلہ کرے؟ جی بالکل بالکل درست بات ہے، اور یہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ جہاں تک جوڈیشل کمیشن کا تعلق ہے اس کا فیصلہ ہم کل اور پرسوں کریں گے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنیں گے۔ مولانا فضل الرحمان پر دباؤ کے حوالے سے جے یو آئی کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے آئینی ترمیم کے لیے بتایا، ان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ نے جو بیان دیا ہے وہ غلط ہے۔ جنیس کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اغوا ہونے والی بات ہوتی تو سب سے آسان ہدف وہ تھے، مگر ان سے کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ جے یو آئی جسٹس یحییٰ آفریدی کی نامزدگی کو قبول کرتی ہے۔ دستوری ادارے نے دستوری طریقے کے تحت انہیں چنا ہے۔ لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر اب وہ سب کے چیف جسٹس ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل متن پر اتفاق نہیں کیا تھا، بلکہ مولانا نے ہمیں کہا کہ دیکھیں ہم نے اگر یہاں سے زیادہ پش کیا تو پھر اس سے آگے وہ خود اپنی مرضی سے کر لیں گے اور ہمیں ووٹ دینا پڑے گا۔ اگر ہم یہ ووٹ نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ہمارے اب کتنے لوگ ہمارے بھی اغوا ہو جائیں گے، آپ کے کتنے لوگ اغوا ہو جائیں گے۔ میری موجودگی میں ایسی بات سلمان اکرم راجہ صاحب سے نہیں ہوئی ہے، اور آخری دونوں ملاقاتوں میں میں موجود تھا، ایون جو میڈیا ٹاک تھی اس میں بھی میں موجود تھا۔ اس میں اگر اغوا ہونے والی بات ہوتی تو سب سے آسان ہدف تو میں ہوتا ہوں، تو مجھے تو کسی نے چھیڑ چھاڑ نہیں کی ہے۔ جیسے یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نامزد ہو گئے ہیں، صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں، جے یو آئی ایکسیپٹ کرتی ہے ان کی نومینیشن کو؟ بالکل ایکسیپٹ کرتی ہے۔ ایک دستوری ادارے نے ایک دستوری پروسیس کے تحت جو ہے نا ان کو جب سلیکٹ کیا تو بس میں رائے کا مختلف لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جب کسی کے اوپر اجماع ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ سب کے وہ چیف جسٹس ہیں۔
मौसम में तब्दीली के साथ ही फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ जाने से मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया है। इंतजामिया की स्मॉग को रोकने के लिए तमाम पेश के इकदाम धरे के धरे रह गए हैं। मजीद जानेंगे इमरान चौधरी की रिपोर्ट में। ये चिमनी से निकलने वाला और फसलों की बाकियात को जलाने से पैदा होने वाला धुआं इस बात की गवाही दे रहा है कि स्मोक की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम भी इस धुएं की नज़र हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट में लगी बेशतर फैक्ट्रियां, धुआं छोड़ते भट्टे और गाड़ियां स्मोक का बाइस बन रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं, इसलिए स्मोक का दौरानिया वस्त दिसंबर तक जारी रह सकता है। भट्टों का धुआं है और ऐसी पोल्यूशन फैलाने वाले जो फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ कभी किसी ने कार्रवाई नहीं की। भट्टों की इतनी आलूदगी है, वो जिग-जैग वाला सिस्टम कहाँ गया? स्मोक के बाइस निश्तर हॉस्पिटल में दमा, खांसी, नज़ला और जुकाम के मरीजों में इजाफा हुआ है। अस्थमा, सांस लेने में प्रॉब्लम, एलर्जिक राइनाइटिस, इससे बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया जाए और सबसे पहले जो स्मोक है इसका सद्भाव किया जाए। शहरियों का कहना है कि महकमा माहौलियात और ज़िला इंतज़ामिया को अपना भरपूर किरदार अदा करके स्मोक को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। कराची के बलूचिस्तान से मिलाने वाली हब नदी के अहम पुल का तामीराती काम 2 साल 3 माह बाद मुकम्मल कर लिया गया। पुल को बाकायदा इफ्तिताह के लिए ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान है। तफसीलात इब्राहिम कम्बोज से। जी बिल्कुल, कराची से हब आने और जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला हब नदी का अहम पुल का तामीराती काम 2 साल 3 माह बाद मुकम्मल कर लिया गया है। बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा, जिसके बाद इस पुल को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। हब नदी का पुल 25 जुलाई 2022 को सैलाबी रेले में बह गया था, जिसके बाद कराची से हब आने और जाने वाली आवाम को पुल न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जिससे मुतबादिल रास्ते पर शदीद ट्रैफिक जाम रोज का मामूल था। मुतबादिल रास्ते पर बारिशों में सैलाबी रेला आने से मुतबादिल रास्ता बह जाया करता था, जिससे आवाम को 22 किलोमीटर का तवील रास्ता तय करके हब बाईपास से गुजरकर कराची हब आना और जाना पड़ता था। और जंग में सरकारी हाई स्कूल की इमारत फर्नीचर समेत गंदे पानी में डूबी हुई है और तालिबात अपनी आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए मदरसे में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानेंगे लियाकत अली अंजुम से। जी, मैं इस वक्त जिस जगह मौजूद हूँ ये ना तो कोई सैलाबी इलाका है और ना शहर से दूर दराज कोई देही आबादी, बल्कि ये जंग शहर का गुंजान आबाद मरकजी इलाका बस्ती दीवान वाली है। और मेरे पीछे ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बस्ती दीवान वाली की है, जो गुज़श्ता 3 माह से सीवरेज के गंदे पानी में घिरी हुई है। इस सिलसिले में स्कूल इंतज़ामिया तो बात करने से गुरेज़ा है, अलबत्ता तालबात का दुख उनकी बातों से अय्या है। हमारे स्कूल में बहुत पानी आ गया, इस वजह से हमें जल्दी छुट्टी हो जाती है और हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़ाया हो रही है। प्लीज़ हमारे स्कूल में पानी कम करवाएं। हम पहले डेस्क पे बैठ के पढ़ते थे, अब हम नीचे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ने के लिए आने वाली 400 तालबात और ख़वातीन असातिज़ा तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए करीबी मदरसे में सर छुपाए हुए हैं। स्कूल स्टाफ और तालबात स्कूल में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि स्कूल की इमारत और फर्नीचर मुकम्मल तौर पर सीवरेज के गंदे पानी के नरगे में है। सरगोदा में 97 केनाल रकबे पर गवर्नमेंट नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। तफसीलात बता रहे हैं मलिक असगर। जी, सरगोदा में 19 अरब रुपए की खतीर ग्रांट से नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर इस प्रोजेक्ट का काम 24 घंटे चलाया जा रहा है, जिसके लिए 300 से ज़ायद मज़दूर काम कर रहे हैं। 7 मंजिला नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो महकमा सेहत के हवाले से एक मेगा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर 300 से ज़ायद बिस्तर होंगे इस हॉस्पिटल के, और वस्ती पंजाब के लिए ये महकमा सेहत और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से सरगोदा ही नहीं बल्कि गिरदोनवा के 8 अजला के लोगों के लिए गिफ्ट होगा। अप्रैल में अगले साल जो है इसका ओपीडी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि मुकम्मल तौर पर इस प्रोजेक्ट को सितंबर में मुकम्मल करने का ऐलान किया गया है। और ट्रैफिक वार्डन्स को मौसमी असरात से महफूज रखने के लिए फैसलाबाद में सोलर पैनल्स वाले कैबिन की फराहमी शुरू कर दी गई है। सोलर कैबिन हर चौक में लगाया जाएगा। रोशनी, पानी और पंखे का भी इंतजाम किया गया है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट।
गर्मी और सर्दी से बचाव के लिए शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर लगाए जाने वाले ये कैबिन सोलर पैनल से आरास्ता हैं और ट्रैफिक वार्डन्स को मौसम की शिद्दत से बचाने के अलावा दीगर सहूलियात भी मुहैया करेंगे। इसके अंदर पानी का इंतजाम है, इसके अंदर पंखे का इंतजाम है, इसके अंदर लाइट का इंतजाम है और उसके लिए बैठने का इंतजाम है। सख्त गर्मी में दरख्तों तले पनाह पर मजबूर रहने वाले ट्रैफिक वार्डन्स सोलर कैबिन मिलने पर खुश हैं। अफसरान बाला की तरफ से ये जो कैबिन हमें दिया गया है इंतहाई ऐसा इंतजाम है, मौसम की शिद्दत से बचने के लिए बेहतरीन है। खुले आसमान तले फराइज सर अंजाम देने वाले ट्रैफिक वार्डन्स को हवा, पानी और रोशनी जैसी सहूलियात के हामिल सोलर कैबिन मिलने से इनकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी की उम्मीद है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हैदराबाद में एलानी और गैर एलानी बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया है, जिसके सबब मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तफसीलात अली नईम से। हैदराबाद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फॉल्ट के नाम के ऊपर भी बिजली बंद की जा रही है। लोगों के कारोबारी ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। लोगों का ये कहना है कि मौसम अब जो है वो कदरे बेहतर है, पीक सीज़न भी नहीं है, उसके बावजूद भी हैस्को की जानिब से गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके अंदर मज़ीद इजाफा ही होता जा रहा है। इस हवाले से हमने हैस्को तर्जुमान से मौक़िफ़ लेने के लिए मुतादिद बार कोशिश की, लेकिन वो दस्तयाब नहीं हो सके। जी। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के लिए लाहौर में मौजूद गैर मुल्की ख़वातीन खिलाड़ी पोलो से तो लुत्फ़अंदोज़ हो ही रही हैं, साथ ही पाकिस्तानी खानों के मज़े ले रही हैं। किसी ने बिरयानी खाई तो किसी ने चिकन करी को पसंद किया। पोलो इन पिंक टूर्नामेंट एबक पोलो ग्राउंड लाहौर में जारी है। पहली मरतबा खवातीन की एक बड़ी तादाद टूर्नामेंट में शरीक है। इनमें ज्यादातर गैर मुल्की खवातीन खिलाड़ी हैं, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड, नॉर्वे, ईरान, अर्जेंटीना, मैक्सिको और आयरलैंड से है। खवातीन खिलाड़ी जहां पोलो के मियार से मुतमईन हैं, वहां वो लाहौर में पाकिस्तानी खाने भी शौक से खा रही हैं। I am really enjoying all the local food. I love all the curries, chicken curries, chickpea curries with biryani. It's so delicious. Delicious food here. We've had dal and roti and rice and delicious puddings. गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे मेजबान हैं, अक्सर दावतों पर जाते हैं, लेकिन कुछ को यहाँ के खाने स्पाइसी लगते हैं। It's spicy but delicious spicy. I like that, especially biryani. I love that. I love the people here. I honestly think the hospitality is unmatched. It's such an amazing place. I have such a lovely time with everyone. कैंसर की आगाही के लिए होने वाले टूर्नामेंट की हर टीम में एक खातून खिलाड़ी शामिल है। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। और लाहौर कलंदर्स की टीम गयाना में होने वाली ग्लोबल सुपर लीग में शिरकत करेगी। लीग में 5 टीमें शिरकत करेंगी। GSL T20 के शेड्यूल भी ऐलान कर दिया गया है। इवेंट 26 नवंबर से शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि वो ग्लोबल सुपर लीग का हिस्सा बनने पर पुरजोश है। लाहौर कलंदर्स वाहिद टीम है जो GSL T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। GSL के पहले एडिशंस में इंग्लैंड की हैम्पशायर हॉक्स, वेस्ट इंडीज से गयाना अमेजोन वॉरियर्स, बांग्लादेश से रंगपुर राइडर्स और ऑस्ट्रेलिया से विक्टोरिया शिरकत करेंगी। इवेंट 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक खेला जाएगा, जिसकी इनामी रकम 10 लाख अमरीकी डॉलर्स रखी गई है। लाहौर कलंदर्स के ऑनर समीन राना का कहना है कि वो GSL के लिए बहुत पुरजोश हैं और ये प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के टैलेंट की महारत को टेस्ट करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। दिफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले के रद्द-ए-अमल में तुर्किया ने इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें 30 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। दिफाई कंपनी के हेडक्वार्टर पर हमले में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के अरकान के मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया गया है। और तुर्क वजारत दाखिला का कहना है कि अनकरा हमले में मुलव्वस दहशत गर्दों की शनाख्त की कोशिश जारी है। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुसल्लह मर्द और खातून तुर्किया की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के हेडक्वार्टर में मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। इमारत से धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी। दावा किया गया है कि मुसल्लह अफराद के दाखिल होने से पहले इमारत के दरवाजे पर भी खुदकुश हमला किया गया था।
ब्रिक्स तंजीम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें रुकन ममालिक ने खुद मुख्तार सरहद पार तस्फिया इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने का जायजा लेने के लिए बातचीत पर इतफाक किया है। 2000 इजलास के बाद जारी एलामिया के मुताबिक रुकन ममालिक ने यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल और तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने पर जोर दिया। गज़ा और मगरबी किनारे पर इसराइल की बमबारी से शहरियों की बड़े पैमाने पर आबाद जबरी इनखला और तबाही पर तशवीश जाहिर की। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 28वां रोज़ रिपोर्ट कर रहे हैं वलीद अहमद। मज़ाइका खेजी के पर्दे में छुपे गहरे पैगामात, रंगारंग मलबूसात में शेक्सपियर्स फूल। बरतानवी थिएटर ग्रुप ने शेक्सपियर के उन किरदारों को सकाफती मेले में निहायत दिलकश और मुनफरिद अंदाज में पेश किया जो इंसान की सादा लोही में छुपे दानाई के पहलुओं को उजागर करते हैं। Where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming. एक तरफ शेक्सपियर के मशहूर जुमले डाइस से पेश किए गए, And I for Rosalind. And I for no woman. Tell me. दूसरी जानिब स्टेज पर उन जुमलों को किरदारों में ढाला गया। I would learn that. For by the marks of sovereignty, knowledge. The performance itself is a combination of music, of dance, and of storytelling. So it's where art really intersects how we physicalize what we hear in the music and how we can show what we feel through the body. Our program was all about the fool that Shakespeare wrote down in all the sorts of pieces he wrote. So we had King Lear appearing, and he acted like a fool, and his fool was actually talking sense. फिर बर्लिन और लाहौर के मौसीकारों ने मिलकर दिलकश और मशहूर गुन धुने। उस्ताद अशरफ शरीफ ने जर्मन फनकारों के दरमियान बैठकर सितार से सुर निकाले। क्रिस्टो ने पियानो पर जादुई उंगलियों का इस्तेमाल किया और थॉमस ने ड्रम पर शानदार महारत दिखाकर मशरकी और मगरबी मौसीकी को खूबसूरती से यकजा किया। हर किस्म का म्यूज़िक टेस्ट करना चाह रहा हूँ। जो क्लासिकल है वो तो मेरा ट्रेडिशन है, उसको हाँ अगर खुदा ना खास्ता मेरे क्लासिकल में कोई कमी आ जाए फिर मुझे इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी आइडेंटिटी को कायम रखते हुए आप एक्सप्लोर करें। We love to be here. It was a pleasure to play at the festival because we are now for 1 week on tour here in Pakistan and it was amazing. We had so much wonderful reviews and the people were so nice to us and so thanks for being here. आर्ट्स काउंसिल कराची जियो और जंग के इश्तराक से 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 29वें दिन जहां अमरीकी थिएटर ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस है तो वहीं मुत्तहिदा अरब इमारात के सकाफती रंग भी नजर आएंगे। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।